Hi friends, in today's session we'll start with a fresh chapter, chapter number 3, that is periodic table. So hope you remember this periodic table, and you have to be, just because in through the next 2 years, that is 11 and 12, we have to discuss this full periodic table. Yes, no kidding, we have to discuss full periodic table. Just because in 11th we have a separate chapter that is called S block element. S block element is nothing but group number 1 and group number 2, means this family member and this family member we have to discuss in 11th. Next we have a chapter that is P block element. In that we have to discuss boron, carbon and nitrogen family, means this family, this and this, that is group number 13, 14 and 15 we have to discuss in 11th standard. In 12th we have group number 16, 17 and 18, that is in P block element, and one more chapter that is D and F block element. So in short, within this 2 years span we have to discuss this full periodic table. So that's why in 11th chapter number 3, periodicity is really very important for you guys. Why I am taking this chapter right now? Just because in 10th standard chapter number 5 you already aware about this periodic table little bit, and in 11th almost 50% chapter is repeat to this 10th standard. Means we'll once again start with Dubiner triad, then there is octaves rule, that is Sa Re Ga Ma Pa Dha Ni Sa, then Dmitri Mendeleev's periodic table, then modern periodic table given by the Henry and Moseley, and basically this all the stuffs once again are repeating. So this is just like of a brush up session. तो फर्स्ट सेशन हमारा पूरा ब्रशअप सेशन रहेगा, जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे बेसिक पॉइंट के बारे में. मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का पार्ट जो है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, मीन्स हाउ दिस पीरियोडिक टेबल आर फिजिकली एसोसिएट विथ ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. ये एक एक कंसेप्ट बहुत इन डेप्थ में समझाया गया हुआ है इन 11th के अंदर. तो आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड सेशन इज प्रीटी इजी टू यू गाइस, जस्ट बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट रिवीजन ऑफ 10th स्टैंडर्ड. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद दिस पीरियोडिक टेबल. So let's start with the chapter number 3, periodicity. Friends, initially we have 80 elements in periodic table. So can you guys believe it is really very difficult to arrange this periodic table? Let's take example. अगर मैं आपको household 50 things दे रहा हूँ और मैं आपको बोल रहा हूँ आप इसको arrange कीजिए. So each and everyone having a different point to arrange this 50 things. Means कोई एक पहला बंदा आएगा, वो अरेंज करेगा अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी के हिसाब से, मीन्स जो डे टू डे लाइफ में ज़्यादा चाहिए वो आगे रखेंगे, बाकी सारी चीज़ पीछे रखेंगे. शायद आपका ब्रदर या सिस्टर आएगा, वो उसको अरेंज करेगा अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट, मीन्स जो चीप चीज़ें हैं वो थोड़ा सा आगे रखेंगे एंड कॉस्टलीस्ट चीज़ है वो पीछे रखेंगे. थर्ड कोई आएगा, मम्मा या पापा, वो शायद उसको अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द हाइट, जो छोटी छोटी चीज़ है वो आगे रखेंगे और जो बड़ी बड़ी चीज है वो पीछे रखेंगे. बट ईच एंड एवरी टाइम, ईच एंड एवरी पर्सन हैविंग देयर ओन थॉट टू अरेंज दिस 50 थिंग्स. तो सोचिए 80 एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए साइंटिस्ट को कितनी दिक्कत हुई होंगी. सो दैट्स व्हाई वी हैव अ वैराइटीज ऑफ लिस्ट टू अरेंज अ पीरियोडिक टेबल. सो दिस आर द स्मॉल session that in 1817 first scientist Doberener start with their triads. Then 1862 then Deschamps-Courtois arranged this periodic table. Then 1865 we have one more scientist, that is Newland's law of octave, that is you are aware about Sa Re Ga Ma Pa Dha Ni Sa. Then one more scientist, that is called Lothar Meyer, in 1868 arranged this periodic table. And finally in 1869 we have a Mendeleev periodic table that has been overcome by Henry Moseley in 1900. So Dmitri Mendeleev is the father of periodic table,
and after few years we have a modern periodic table. So these are the, see आप देखिए 1817 से स्टार्ट हुआ था अरेंजमेंट करना, and almost we get modern periodic table in 1900. So you can say that approximately 83 years लगे to simple arrange this 80 or 90 elements को रखने के लिए. So in this session we have to discuss the efforts given by each and every scientist. Many a time 1 marker question के अंदर इसके statements पूछे जाते हैं, तो आप इसको इग्नोर नहीं करोगे, तो इट इज अवेलेबल इन योर 10th स्टैंडर्ड, बट देन आफ्टर इट इज ऑल्सो आस्क इन 11th एग्जामिनेशन. अभी भी न्यूलैंड्स लॉ पूछते हैं, अभी भी डोबेरेनर्स ट्रायड पूछते हैं, अभी भी मेंडलिस पीरियोडिक टेबल का स्टेटमेंट पूछते हैं. सो 1 by 1 करके हम एक एक करके इसके स्टेटमेंट्स और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट, जोहान डोबेरेन classified element into the small groups, each containing these 3 elements, and the small groups are called triads. Basically डोबेरेनर ने ट्राई किया 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाने का, एंड इस 3 एलिमेंट के ग्रुप को बोलते हैं ट्रायड्स. स्पेशलिटी क्या थी ये ट्रायड्स की? इन दिस ट्रायड the atomic mass of this middle element is approximately the average of this other 2 element. Means जो सेंटर का एटम था उसका मास रिमेनिंग 2 एलिमेंट के मास से एवरेज था. कैसे? नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, नीचे चेक करते हैं. दैट इज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. लिथियम हैविंग 7, potassium has 39. So you put it 7 plus 39 divided by 2, you get 23. That is the atomic mass of sodium. ऐसे एक और पैर ले लीजिए समझने के लिए. कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. कैल्शियम इज 40, बेरियम इज 137. 40 plus 137 divided by 2, you approximately get 88.5, which is approximately nearer to this 87. Very famous triad that is called as chlorine, bromine and iodine, halogen compounds. So that is 35.5, 127, 35.5 plus 127 divided by 2, you get 81.25, means 80. So what is this law state? उन्होंने 3 एलिमेंट की पेयर बनाई एंड फर्स्ट एंड थर्ड का मास का एवरेज निकाला, तो ऑलमोस्ट मिडल एलिमेंट जितना हुआ. दैट इज एंटाइटल एज रूल्स ऑफ ट्रायड. ट्रायड, द एटॉमिक मास ऑफ दिस मिडल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली द एवरेज ऑफ दिस अदर 2 एलिमेंट. दिस इज नोन एज लॉ ऑफ ट्रायड्स. बट जैसे कोई एक साइंटिस्ट आपने हिस्ट्री में देखा होगा, तो कभी भी फर्स्ट रूल और फर्स्ट लॉ आता है, इट हैज अ लॉट्स ऑफ डिसएडवांटेज और लिमिटेशन. सेकेंड साइंटिस्ट वर्क ऑन दैट लिमिटेशंस एंड ओवरकम दैट लिमिटेशंस, और वो फिर आगे बढ़ जाता है. उसमें भी कुछ ना कुछ गलतियां होती है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आता है. देन कम विद द थर्ड साइंटिस्ट एंड देन सीरीज गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. सो लाइकवाइज डोबेरेन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि ही फाउंड ओनली 2 to 3 पेयर ऑफ दिस ट्रायड्स इन पीरियोडिक टेबल. वो कौन कौन से पेयर थे? दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज. फर्स्ट पेयर था लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का. दूसरा पेयर बना कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम का. तीसरा पेयर बना क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का. एंड एक और पेयर बना फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी का. So it's all about 3 to 4 or maximum 5 triads he found. Remaining सभी एलिमेंट के लिए कभी प्रूफ नहीं हुआ. So that's why this is a big disadvantage or big limitations of Doberener. खाली 3 या 4 एलिमेंट की पेयर ऐसी मिली, ट्रायड्स मिली कि जो एप्लीकेबल हुआ ये लॉ के लिए. So that's why this law is not feasible. Second scientist, Newlands. Newlands arranged this element in the increasing order of their atomic masses. He noted that the properties of every 8th element starting from this given element are similar to that of this first element.
मीन्स दिस इज द न्यूलैंड्स लॉ. न्यूलैंड्स लॉ क्या बता रहा है? एवरी 8 एलिमेंट्स means 8th element has similar physical and chemical property to this first element. The relationship is just like resemblance of this first and 8 of this musical notes. Musical notes means सा, रे, ग, म, प, द, नी and फिर से सा. So he named as law of octaves. But limitations, law of octave has tremendous limitation is it is only and only applicable till 20th element, that is called as calcium. After calcium, octaves rule is not feasible. रीजन क्या है? रीजन सोचिए, आपको मैं 1-2 मिनट दे रहा हूं, हम डिस्कशन आगे करते हैं, फिर मैं उसका रिवीजन में उसको बताऊंगा लिमिटेशंस क्या है. सो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine. So that is 1 to 7 and once again an 8th element that is called as sodium. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8th once again a sodium. Then magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur and chlorine. So देखिए फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, similar properties, लिथियम के बाद सोडियम एंड क्लोरीन के बाद आया पोटेशियम. यही हमने ट्रायड में भी देखा था, दैट इज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम एंड देन कैल्शियम. दिस इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल टिल 20th. वो लिमिटेशंस है, ओनली एप्लीकेबल टू दिस 20th एलिमेंट मींस कैल्शियम. क्यों? इसका रीजन आ रहा है कि कैल्शियम के बाद 21 एलिमेंट इंट्रोड्यूस इनटू दिस डी ब्लॉक एलिमेंट. सो डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर 10 एलिमेंट और जुड़ जाएंगे, देन वंस अगेन वी हैव अ पी ब्लॉक एलिमेंट. सी पीरियोडिक टेबल में देख के हम थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर कर सकते हैं. किस हिसाब से? तो इन ग्रुप नंबर 1 की बात करूं तो ग्रुप नंबर 1 में था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. एट दैट टाइम देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस. उसके बाद नेक्स्ट आ गया सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन सीधा चला गया एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, देन पोटेशियम एंड कैल्शियम. अब देखिए कैल्शियम के बाद क्या आ रहा है? स्कैंडियम. मीन्स यू कैन नॉट डायरेक्टली जंप टू दिस गैलियम. दैट इज 10 एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक इज इंटरमीडिएट बिटवीन दिस टू. And due to this is only and only applicable till 20th. 20th के बाद interventions of D block element means scandium से लेके zinc आएगा, then you reach to this gallium which is almost resembles to this aluminium. But in between you have a 10 elements. So due to this reason, octaves rule is a big failure. So the limitations क्या था? तो limitations एक बार discuss कर ले. But this classification was rejected since the law of octave was published to element up to this calcium. Also by the discovery of noble gases. जब ये law of octave आया तब noble gases का discovery नहीं हुआ था. The properties of 8th element becomes not similar to that of this first element. क्यों? क्योंकि आपने देखा ये law जो था वो फ्लोरीन के बाद सीधा कौन सा आ रहा था? सोडियम. What about neon? सो अगर हम नियॉन को 8th एलिमेंट लेते हैं तो नियॉन की प्रॉपर्टी एंड लिथियम की प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी. सो दैट्स व्हाई दैट इज अ सेकंड ड्रॉबैक. बट आप देखिए ईच एंड एवरी साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे ये अरेंज करने के लिए. अब फर्स्ट हमने देखा डोबरेनर, सेकंड देखा हमने न्यूलैंड्स लॉ. ये दोनों के दोनों लॉ इंपॉर्टेंट है एज पर योर एग्जामिनेशन कंसर्न. इसके बाद हम डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं डिशॉन कॉर्टोइस का. इन बिटवीन दिस वन मोर साइंटिस्ट केम. सी आप देखिएगा 1817 में था डोबरेनर, देन 1865 में था न्यूलैंड्स, 1862 में एक और साइंटिस्ट था डिशॉन कॉर्टोइस. अब ये साइंटिस्ट का इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है? इवन दिस इज नॉट अवेलेबल इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, क्योंकि ह्यूज रिजेक्शंस आया. एक चीज बहुत अच्छी थी ये साइंटिस्ट की, ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू अरेंज द एटम बाय एटॉमिक वेट. अगर आप डिमिट्री मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसने भी एटॉमिक वेट से ही अरेंज किया था. कब अरेंज किया था? इन 1869. बट 1862 में ये साइंटिस्ट ने एटॉमिक वेट से ही अरेंज किया था. इसका जो पीरियोडिक टेबल था वो फॉर्म था सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल. इट्स लुक लाइक ए सिलेंडर की तरह पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को उसने अरेंज किए थे.
तो सर ये चीज अच्छी है, सिलेंडर फॉर्म अच्छा है, तो गलत क्या चीज हुई? व्हाई इट इज अ बिग फेलियर? Failure reason is because he used the geological term rather than chemical term. Each and every element के geological sources से उसने अरेंज किया था, ना कि chemical term से अरेंज किया था, and this never accepted by the world. And due to this reason, this scientist name does not included in the history of this periodic table. But हाँ, अगर आप स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं इसका जिक्र जरूर होगा, दो इट इज नॉट अवेलेबल इन योर टेक्स्ट बुक, बट आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा बिकॉज ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू अरेंज दिस एटम बाय इट्स एटॉमिक वेट. So in this session we'll discuss about the three basic scientists to arrange this periodic law. नेक्स्ट सेशन हम सीधा स्टार्ट कर रहे हैं लोथरमेयर एंड डिमेट्री मेंडेलीव का. दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट वन. सो आप ये इतना अच्छे से पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस अबाउट द मोर.